Hey guys, welcome to Knowledge of Physio classes, and I am Dr. Ratab Shastri. Please like, share, and subscribe for this channel to my channel. So today's topic is stroke. Let's get started. So stroke is basically what? We will see its introduction and all these. Stroke is defined as abrupt onset of neurological deficit. In these, this persist for the 24 hours. Okay, so there is a neurological deficit. एक एब्रप्ट ऑनसेट हो जाएगा और नो एपरेंट केस, कोई ऐसा केस नहीं है देन दैट ऑफ द वैस्कुलर ओरिजिन. ऐसा न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट है जिसकी वजह से जो न्यूरॉन्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है एंड देन वी विल सी मोर ऑफ इट. ओके, सो हियर इज प्रोग्रेसिव स्ट्रोक, completed stroke, or TIA means transit ischemic stroke. Now, in these transit ischemic attack, a clinical syndrome of rapid onset of the focal deficits of brain function which resolves within 24 hours. Okay, so what basically कि जो focal deficits है या फिर जिसको बात करने में तकलीफ हो रही है और there is a neurological deficits in that particular patients, there is a clinical onset which resolves within the 24 hours. So whenever it completes its syndromes and all these symptoms resolve within 24 hours, that will be transit ischemic attack will be there, and then regardless of whether it's imaging evidence of new permanent brain injury. Progressive stroke. Now progressive stroke in which the focal neurological deficit worsens with the time. Progressive means वो प्रोग्रेस कर रहा है धीरे धीरे करके. सो इन दिस ऑल्सो प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन्स ऑफ प्रोग्रेसिव? फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट्स जो कि प्रोग्रेस करते रहता है और इंक्रीज विद द टाइम. नाउ यू कैन सी द कंप्लीटेड स्ट्रोक एंड आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट विद अवर physiotherapy management. Completed stroke, a stroke in which the focal neurological deficits persist and do not worsen with time. Okay, जो टाइम के साथ और ख़राब नहीं होता, वर्जन्स नहीं होता वो, तो दैट विल बी योर कंप्लीटेड स्ट्रोक. यानी कि स्ट्रोक आया और चला गया लेकिन वर्जन्स विद टाइम, यानी ख़राब नहीं हुआ टाइम के साथ. लेकिन जो ख़राब करता है दैट इज़ योर प्रोग्रेसिव स्ट्रोक विच इंक्रीजेस इट्स फोकल deficits or the neurological deficits with worsens with the time. Okay, so this is the classifications of the stroke, and let's talk about its risk factors. Like fixed is age, gender, यानी कि मेल को ज़्यादा अफेक्टेड है, रेस, हेरिडिटी, वैस्कुलर इवेंट, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन अगर किसी का या हार्ट अटैक वगैरह है, पेरिफेरल एम्बोलिज्म, हाई फिब्रिनोजन, और जो मॉडिफाइबल है जो कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं दैट विल बी हाई बीपी, योर हार्ट डिसीज, हार्ट फेलर, डीएम और डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरलिपिडेमिया जिसका लिपिड ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, स्मोकिंग, एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन, उसको स्ट्रोक आ सकता है. जो अल्कोहल है, जो स्मोकिंग है, दैट विल बी मॉडिफाइबल. हम जब चाहे वो हम चेंज कर सकते हैं इन आवर लाइफ, वी कैन चेंज दैट पर्टिकुलर थिंग्स. ओके, दैट विल बी और दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स. लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स अगर हम नहीं लेंगे तो इट्स बेटर. सोशल डिप्रिवेशन, ओबेसिटी एंड सेडेंटरी लाइफ स्टाइल. ओके, okay, let's going to the point of the physiotherapy management of stroke. Now after the introduction of the stroke and its types, like there is transit ischemic attacks which resolves within 24 hours, focal deficits or neurological deficits. Meanwhile we have also
go through the progressive strokes which worsens with the times or the neurological deficits. Let's get back to this physiotherapy management. We have a lot of points. You can increase the points also. To educate patient. Now give knowledge about the condition, awareness about the regular treatment sessions, and explain plan of care. Now whenever you know about the stroke patient, क्या बताओगे? सबसे पहले एजुकेट करेंगे पेशेंट्स को, उसके ट्रीटमेंट सेशंस को बताएंगे, अवेयरनेस करेंगे, दूसरा प्लान ऑफ केयर और सिम्टम्स का मैनेजमेंट कैसे करोगे, एक्टिव पार्टिसिपेशन उस पेशेंट का कैसे करोगे. दैट इज योर मैनेजमेंट का पॉइंट नंबर 1 इज टू एजुकेट पेशेंट. दूसरा proper positioning of the patients. Why this proper positioning of the patients? Okay, because there is having a flexed upper limb, flexed lower limb. ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है स्ट्रोक का, तो उसका प्रॉपर पोजिशनिंग एक होना चाहिए. साइड लाइन में हो या सुपाइन में हो, ये 2 पोजिशंस हमेशा रहती है. अवॉइड फॉल्टी पोस्चर. अगर पोस्चरल डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए करके उसके मसल्स को, MS मीन्स रिलैक्स द मसल्स, सो हम मसल्स को कैसे कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं. प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस लाइक अ हेमिप्लेजिक शोल्डर नहीं होना चाहिए. दूसरा, सो फॉल्टी पोस्चर नहीं होना चाहिए, मसल्स रिलैक्स होने चाहिए और हेमिप्लेजिक शोल्डर नहीं होना चाहिए. इसके लिए वी आर डूइंग अ प्रॉपर पोजिशनिंग. ठीक है, तो दिस इज योर this one and this one and this one. This is your goals. This is your goals, and this one is the rationale. Okay. Now coming to the third one, to prevent the contractures. Now contractures नहीं होने चाहिए करके positioning against splinting और proper joint alignment and maintain wrist and finger in extension. अब अगर wrist और finger extension पे रहेंगे, because the stroke patients generally have finger flexed like this one. फिंगर उसका फ्लेक्स रहेगा हमेशा. उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंशन पे तो कॉन्ट्रैक्चर्स नहीं आएंगे. टू डिक्रीज प्लास्टिसिटी इन अपर लिम एंड लोअर लिम. ओके, सो टू डिक्रीज प्लास्टिसिटी इन अपर लिम एंड लोअर लिम, क्योंकि इस प्लास्टिसिटी भरी पड़ी रहेगी. यानी कि इंक्रीज टोन, यानी कि हाइपरटोनिया स्ट्रोक में देखने के लिए मिलेगा. तो इसमें क्या है, पहला है PNF टेक्निक. PNF में रहेगा D2 फ्लेक्शन अपर लिम का, यानी कि D2 फ्लेक्शन मीन्स लाइक दिस. Like this, you have to, the starting position will be like this and the ending position will be like this. This is your PNF technique. D2 flexion and D1 extension lower limb का. ठीक है, अगर lower this is upper extremity and lower extremity like this. Okay, this is your interventions का column. This is your rationale. सो जेंटल रिदमिक पैसिव मूवमेंट, हम क्योंकि पेशेंट कैन नॉट डू इट्स मूवमेंट, तो हम पैसिव मूवमेंट करेंगे पूरे जॉइंट्स का 3 to 4 times a day. And then you coming to the stretching, again you do PNF stretching. PNF technique is different one, like D1 flexion, D2 extension. When you come with these passive movements, it's stretching, चाहे वो tendinoacalious stretching हो, then your hamstring stretching will be there, your piriformis, all these muscles will be get tired after this stroke. So you should come across this shoulder flexor, shoulder extensors, trapezius, hip flexor और hip adductors और TA, जो कि मैंने बताया था TA. ओके, ये क्या के लिए, टू ब्रेक द सिनर्जी पैटर्न. जब एल्बो फ्लेक्स्ड हो जाता है तो पेशेंट वॉक लाइक दिस. सो दिस इज योर एल्बो फ्लेक्स्ड, रिस्ट फ्लेक्स्ड, कुछ भी हो, जो भी है, वॉट एवर इट इज. सिनर्जी पैटर्न उसको बोलते हैं, विच इज जो कि एकदम प्रॉपर पोस्चर में या प्रॉपर पैटर्न में ना हो. दैट विल बी योर सिनर्जी पैटर्न विच इज एबनॉर्मल मूवमेंट. अब रैशनलिंग का मतलब ये है कि हमको सिनर्जी पैटर्न को ब्रेक करना है और इससे फ्लेक्सिबिलिटी एंड जॉइंट इंटीग्रिटी इम्प्रूव करना है. देन इंक्रीज द मसल फ्लेक्सिबिलिटी. मसल फ्लेक्सिबिलिटी
जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी और जॉइंट इंटीग्रिटी, ये सब पढ़ानी है. फ्लेक्सिबिलिटी, जॉइंट इंटीग्रिटी एंड मसल फ्लेक्सिबिलिटी. We will continue in the part 2 video.